हेलो फ्रेंड, मेरा चैनल हिंदी, इंग्लिश, एनिमेशन एंड एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत फेमस हो चुका है। और आज भी मैं मलबेरी 8 स्टैंडर्ड का बहुत अच्छी जो स्टोरी है शेरलॉक होम्स के एडवेंचर में से द डाइंग डिटेक्टिव, ये लिखा है सर आर्थर कैनन डॉयल ने। और ये आज आप देखने जा रहे हैं, तो देखिए। पर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए। Holmes, he cried. Holmes, can you hear me? Is that you, Smith? Holmes whispered. It is very noble of you to have come. Our visitor sniggered. Do you know what is the matter with you? The same, said Holmes. I feel very ill, Smith. Well, I shouldn't be surprised, Holmes. Poor Victor was a dead man on the fourth day. It was certainly, as you said, very surprising that he should have contracted an out-of-the-way Asiatic disease in the heart of London. Singular coincidence. Holmes, very smart of you to notice it, but rather unkind to suggest that it was cause and effect. I knew that you did it. Oh, you did you? Well, you couldn't prove it anyhow. Holmes groaned. Do what you can for me. Let bygones be bygones. Only cure me, and I'll forget it. Forget what? Well, about Victor Savage's death. You as good as admitted just now that you had done it. You can forget it or remember it, just as you like. It matters nothing to me that you should know how my nephew died. It's not him we are talking about. It's you. Yes, I am too ill to think. Listen, Holmes. There was a sound as if he was shaking the dying man. Do you remember a box? An ivory box. It came by post on Wednesday. You opened it. Do you remember? Yes, I opened it. There was a sharp spring inside it. Some joke. It was no joke. It was I who sent it. Who asked you to cross my path? If you had left me alone, I would not have hurt you. I remember, Holmes gasped. The spring. It drew blood. This box. This one on the table. The very one. And it may as well leave the room in my pocket. There goes the last shred of evidence. But you have the truth now, Holmes, and you can die with the knowledge that I killed you. Holmes's voice had sunk to an almost inaudible whisper. What is that? Said Smith. Turn up the gas? Is there any other service I can do for you, my friend? A match to light a candle. I nearly called out in my joy and excitement. Holmes was speaking in his natural voice. There was a long pause, and I felt that Culverton Smith was standing in silent amazement, looking down at my companion. What is the meaning of this? He said at last, in a dry, harsh tone. The best way of successfully acting a part is to be it, said Holmes. I give you my word that for 3 days I have tasted neither food nor drink. Hello! Do I hear the step of a friend? There were footsteps outside. The door opened, and Inspector Morton appeared. All is in order, and this is your man, said Holmes. The officer said, I arrest you on the charge of the murder of one Victor Savage. एनिमेशन एक्सप्लेनेशन तो देख लिया, चलिए देखते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये जो है द शेरलॉक द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स जो है डिटेक्टिव है, उनकी एक स्टोरी उसमें से लिया गया है जो लिखा है सर आर्थर कैनन डॉयल ने। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक टोपी वाला जो आदमी है वो होम्स को बुला रहा है कि हाँ, तो वो बोलता है कि हाँ स्मिथ, तुम आए हो क्या, ऐसे शेरलॉक उनको बोलते हैं। और जो टोपी वाला आदमी है उसका नाम क्या है? नेचुरली उसका नाम स्मिथ है। और वो बोलने के बाद बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा तुम मुझे मिलने आ गए, मुझे मिलने के लिए आने के बाद मुझे खुशी हो गई है। लेकिन स्मिथ जो है वो बोलते हैं कि तुम तो बहुत बीमार से लग रहे हो। तो होम्स बोलता है कि
हाँ, वही बीमारी, वो अनकॉन्शियस फील होना, मैं बीमार सा, वही सेम जो विक्टर को हुआ करता था। तो होम जो है वो उनसे बोलते हैं, तो स्मिथ बोलते हैं कि मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ, बेचारा जो पुअर विक्टर जो अभी 4 दिन 5 दिन पहले मर चुका है, उसका सेम यही केस था। और आज जो तुम मुझे दिखा रहे हो, बता रहे हो, तुम्हारे चेहरे से जो मुझे दिख रहा है वो बिल्कुल सेम ही है। सेम दोनों का मरने का जो तरीका होने वाला है ना, बिल्कुल सेम होने वाला है। दोनों ऐसे डिसीज़ के लिए मरने वाले हैं कि बिल्कुल वो मतलब लोगों के लिए फ़नी होने वाला है। लोग बोलेंगे इतनी सी छोटी सी बीमारी के लिए कोई मर भी सकता है, ये हो सकता है, ऐसे हो गया है। ऐसे वो बताता है कि और तुम समझ सकते हो कि ये तुम्हारी जो डेथ होने वाली है, तुम जो मरने वाले हो, होम्स शेरलॉक को बोलते हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा। ये कोइंसिडेंस भी होगा तो वो कैसे होगा कि चलो ये बीमार हो गया और ऐसे हो गया है और ये मैंने ही किया है, वो स्मिथ बोलता है। तभी होम्स बोलते हैं कि ये तुमने कैसे किया, ये मुझे ज़रूर बताना। तब वो स्मिथ उसे बोलते हैं कि देखो अब तुम जाने का टाइम हो गया तुम्हारा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने उसको कैसे मारा होगा, मैंने क्या किया होगा, वो कैसे विक्टर मरा होगा, ये जान के न जान के तुम्हें फ़ायदा क्या होगा। वे ऐसे वो शेरलॉक होम्स को पूछते हैं, लेकिन होम्स जो बोलते हैं वो गारंटी देते कि देखो श्योरली समथिंग यू हैड डन, मतलब तुमने कुछ तो ऐसे कर दिया है कि जिससे वो मर गया है। लेकिन देखो मुझे बताओ, मैं बताने के बाद मैं किसी को बताऊंगा नहीं, और मुझे जल्दी अच्छा कर दो, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम किसी को बीमार कर सकते हो तो तुम अच्छा भी कर सकते हो, और जल्दी कर दो। जब मैं बीमारी से उठ जाऊंगा, अच्छा हो जाऊंगा, तो तुमने जो भी चीज़ें की होगी वो मैं भूल जाऊंगा तुमने क्या किया था। तो उसमें तो बोलते हैं कि देखो तुम याद रखो, तुम भूल जाओ, इससे मुझे कोई मैटर नहीं पड़ता है। मेरा जो नेफ्यू है वो कैसे मरा है, क्या किया था, कैसे किया था, ये सब मैंने किया था। ओके, लेकिन तुम प्रूफ कैसे करके दिखाओगे कि ये सब मैंने कर दिया था। तो शेरलॉक बोलते हैं कि देखो अभी जो तुम बोल रहे हो ये ना मैं सुनने के ना बताने की किसी की हालत में नहीं हूँ, तुम देख सकते हो मैं कितना बीमार हूँ। और स्मिथ उसे बोलते हैं और उसके छाती पे हाथ रख के जोर जोर से दबा के बोलते हैं कि देखो जो मरने वाला आदमी होता है उसे एक्चुअली ऐसे कुछ बोला नहीं जाता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हें पता है कि तुम लोगों को एक पोस्ट से एक बॉक्स मिला था, वेडनेसडे के दिन आया था, और वो बाय पोस्ट जो आया हुआ जो बॉक्स है वो याद आ जाता है होम शेरलॉक को, और वो बोलते हैं कि हाँ हमने उसे ओपन भी किया था, और उसमें इनसाइड में उसमें कुछ ऐसे जोक्स वगैरह, मतलब जोक नहीं था लेकिन कुछ तो था उसके अंदर। तो वो बोलता है वो जोक नहीं था, वो मैंने सेंड कर दिया था, और तुम मेरे रास्ते को आ गए थे अभी और भी, तो अब तुम्हें मेरे रास्ते से हटना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो शेरलॉक बोलते हैं कि मुझे याद आ गया, हाँ द स्प्रिंग इट ड्यू ब्लड, मतलब वो बारिश जिसमें पानी की बूंदें नहीं ब्लड की बूंदें गिरने वाली, वो बॉक्स देखो वो वहाँ पे टेबल पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो स्मिथ है वो बोलते हैं कि देखो ये यहीं पे पॉकेट पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एविडेंस भी जमा हो चुके हैं, उतना भरपूर हो गया मेरे लिए। लेकिन अब तुमने मेरा नॉलेज सब जान चुके हो, अब तुम्हें मरना ही होगा। मैंने तुम्हें बताया कि मैंने कैसे विक्टर को मार दिया था, अब मैं तुमको भी मारूंगा क्योंकि तुमको सब पता चल चुका है। तभी होल्स का आवाज़ में थोड़ा सा बदल होता है और वो बोलता है कि अच्छा मेरे लिए एक काम। तो ये स्मिथ बोलता है कि अब चलो तुम मरने ही वाले हो, तो तुमको कौन सा, क्या तुम्हारे लिए फ्रेंड मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कौन सा सर्विस तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो शेरलॉक बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो जो कैंडल है उसको जलाओ ताकि थोड़ा सा तो घर में लाइट पहुँच जाए। और जैसे ही वो जलाते हैं तब उनको पीछे कोई डिटेक्टिव जैसे आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ मिल जाता है, और उनका आवाज़ जो है शेरलॉक का
उसमें जो चेंजेस है उनके बॉडी में, उनके गेस्चर में, ये थोड़े अलग से लग रहे हैं। और वो तभी स्मिथ जो है, सुमित इन्होंने मर्डर किया है विक्टर का, तो वो शेरलॉक है ना अपनी चालबाजी से इसे प्रूफ करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बीमार पड़ने का क्या किया है, नाटक कर दिया है। और शेरलॉक होम्स अब खड़े होके बोलते हैं कि एट द एंड अच्छा मैंने बहुत अच्छी सी नौटंकी की है, ड्रामा किया है बीमार होने का। एक्चुअली 3 दिन से मैं कुछ खाया पिया नहीं हूँ, तब जाके ये सब मैंने एक्टिंग की। और ये स्मिथ क्यों की है? क्योंकि मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, तुम्हारा जो गुनाह है वो प्रूफ कर देना चाहता था। और तभी वो इंस्पेक्टर को आवाज़ दे देते हैं। और आप देख सकते हैं कि 3 दिन नहीं खाने पीने के कारण इनका मतलब ऐसे डाउट ही नहीं आ रहा था। और जब वो इंस्पेक्टर को आवाज़ देते हैं तो डोर ओपन होता है, इंस्पेक्टर वहाँ से अंदर है, मॉरिस जो है वो अंदर आ जाते हैं। और वो हैरानी से स्मिथ की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि इतना काफ़ी हो गया इस आदमी को पकड़ने के लिए। तो शेरलॉक होम जो है ये भी बोलते हैं कि देखो एंडिंग में मैंने जिसके ऊपर सस्पेक्ट किया था लेकिन वो प्रूफ नहीं कर सकता था, तो अब प्रूफ कर दिया है, इसे लेके जाइए। तो इंस्पेक्टर बोलते हैं कि चलिए, जो ऑफिसर है वो उसने बोलते हैं कि स्मिथ आपने विक्टर सैवेज का मर्डर किया है, इसके लिए आपको पकड़ा जाता है। ये स्टोरी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे देखते रहिए मेरे चैनल को।